हेलो स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग रिंग्स एंड फील्ड्स। आज की जो थ्योरम है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज एन इंटेग्रल डोमेन if and only if cancellation law holds in the ring. So what is given to you? A ring, commutative ring with unity. You have to prove this ring is integral domain if cancellation law holds, and converse is also true. If cancellation holds, then it must be an integral domain. Integral domain means ring with, it is commutative ring with unity and without zero divisors. We have discussed this, what is integral domain. So let us take proof. Let R be a commutative ring with unity. ठीक है, सपोज R is an integral domain. What we have to prove? To prove cancellation law. So we have to prove cancellation law holds. So let ABC belongs to R such that A is non-zero and AB is equal to AC. ठीक है, अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा तो A cancels with A and you will get B is equal to C. So let us see. So AB, A is common, या पहले हम इसको लिख लें AB minus AC will be 0, or you can say AB minus C is 0. Since R is an integral domain, since R is an integral domain, अगर ये integral domain है, this implies R is without zero divisors. If R is without zero divisors, then either A is 0 or B is 0. This implies either A is 0 or B minus C is 0. But A is non-zero. So this implies B minus C is 0. What this implies? B is equal to C. So this implies cancellation law holds in ring R. So one-sided it is proved that whenever R is integral domain, cancellation law holds. So अब now converse part. So let R be ring with unity given to you. Now we have to prove R is integral domain. And what is given to you? R is commutative with unity in which cancellation holds. So this is given to you now. So you have to now prove R is an integral domain. R integral domain means R must be commutative. It is given that R is commutative. Second is R must have unity. Also R is commutative ring with unity. And third is R has no zero divisors. Means R is without zero divisors. So आपको ये दोनों गिवन है. What you have to prove that R is without zero divisor. So proof में आप क्या लिखोगे? Since R is
is commutative ring with unity, therefore it is sufficient to prove R is without zero divisors. So let A is 0. अगर आपके पास A 0 आ गया तो नथिंग इज, कोई कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज विदाउट जीरो डिवाइजर्स मीन्स अगर आपके पास A भी 0 आता है तो या A 0 या B 0. तो अगर A B इक्वल टू 0 आप लो, let us suppose A comma B belongs to R such that A into B is 0. Case 1, if A is 0, then nothing to prove. अगर A B 0 और A 0 है तो nothing to prove. R is integral domain. Case 2, if A is non-zero such that AB is equal to 0, it can be written like 0 को हम लिख सकते हैं A into 0, और this implies AB is equal to A into 0. Cancellation law holds, A cancels with A, so this implies B is 0. यहां पे लिख लो, because cancellation law holds. So we have B is 0. So this is clear. This implies R is without zero divisors. So R is without zero divisors. R is commutative ring with unity. So this implies R is integral domain. So this completes the proof. Students, next theorem, very important theorem. Every finite integral domain is a field. So how will we prove this? Integral domain is given to you, and this is finite also, and you have to prove this is a field. Integral domain is properties. Commutative ring, it is commutative ring. Next is unity, and third is without zero divisors. This is definition of integral domain. Now we have to prove this as field. A finite integral domain is a field. Clear? So field के लिए a commutative division ring is field. Means first is commutativity and second is division ring. और division ring की definition, non-zero elements have multiplication. Non-zero elements form multiplication group या group with respect to multiplication. ठीक है. अब अगर हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें रिंग में, तो मल्टीप्लीकेशन की दो प्रॉपर्टीज तो हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं. विच वन? क्लोजर एज वेल एज एसोसिएटिविटी. ठीक है. फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन ग्रुप में हम क्या डिस्कस करते हैं? क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन रिंग में ऑलरेडी. और सेकेंड इज एसोसिएटिविटी. इट इज अ रिंग. सबसे पहले फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन होने से पहले वो एक रिंग थी, तो रिंग में ये प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी होती हैं, क्लोजर एज वेल एज एसोसिएटिविटी. अब मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाने के लिए यूनिटी भी हमें देखनी है. यूनिटी भी यहाँ पे है. दिस इज 1. यूनिटी इज 1. मल्टीप्लीकेशन ग्रुप में यूनिटी एलिमेंट क्या होता है? 1. तो कौन सी प्रॉपर्टी रह गई है?
which property we have to prove, that is inverse. So अगर हम ये प्रूव कर दें कि every non-zero elements has inverse, तो जो हमें इंटेग्रल डोमेन दी हुई है वो क्या बन जाएगी, फील्ड. सो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, इंटेग्रल डोमेन दी है तो इट इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग, इट इज रिंग विद यूनिटी, इट इज रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर. सो ये रिंग तो है ही, हमने उसको फील्ड प्रूव करना है. फील्ड के लिए कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड, तो कॉम्यूटेटिविटी इज देयर. डिवीजन रिंग के लिए नॉन जीरो एलिमेंट्स फॉर्म्स मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मींस रिंग है इसलिए क्लोजर एसोसिएटिविटी ऑलरेडी देयर, unity is there, integral domain. So what we have to prove, only that every non-zero element must has inverse. Clear? So let us proceed. So let f be an integral finite, be a finite integral domain. Clear? Having n elements, finite है तो n elements ले लिए. So f is having n elements, a1 a2 up to an. To prove every ai must have multiplicative inverse. This we have to prove, every non-zero. ठीक है. Now every non-zero element must have multiplicative inverse. So यहां पे हम let us choose, let एक एलिमेंट ले लेते हैं a, फील्ड का ही, और जो a है वो इन्हीं में से कोई एलिमेंट है. ये जो n एलिमेंट्स है इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट उठा लिया a विच इज नॉन जीरो. ठीक है. सो इन्हीं में से हमने कोई एलिमेंट उठा लिया a विच इज नॉन जीरो, और हम क्या करेंगे, इस a से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे सेट को. ठीक है. और जब हम a को इस पूरे सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ये सेट फिर से मिल जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि a इसी सेट का एलिमेंट है, a इज एलिमेंट ऑफ सेट f, और मैं अगर किसी a1 से या a2 से जो सेट f में ही पड़ा है उससे इसको मल्टीप्लाई करती हूं तो a इंटू a1 भी f में जाएगा. क्यों? बिकॉज f इज अ रिंग, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. क्लियर? सो अगर मैं a f में से ही उठाती हूं और उसको a1 a2 या यहां से कोई भी एलिमेंट लूं उनसे मल्टीप्लाई करूं तो अगेन मुझे जो एलिमेंट मिलेगा वो इसी सेट का मिलेगा. ठीक है. सो लेट a belongs to f and a is non-zero. So let us multiply. We have a set a, a1, a, a2 up to an which also belong to f. ठीक है. अब ये सेट भी कहां पे चला गया, f में. अब देखो, अब मैं ये प्रूव करूंगी कि ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ये एग्जैक्टली एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. ठीक है. वो कैसे प्रूव करेंगे, इफ पॉसिबल ai is equal to sum aj for i not equal to j. हम ये सपोज कर लेते हैं कि कोई a3 किसी a4 के इक्वल है. ठीक है. i इज नॉट इक्वल टू j. तो देखो क्या ऐसा होता है. सो a कॉमन ai माइनस aj इक्वल टू 0. इट इज रिंग, इट इज इंटेग्रल डोमेन, सो इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स. तो अगर ये विदाउट जीरो डिवाइजर है तो क्या होगा, इधर a इज जीरो और दिस इज जीरो, बट a is not 0, so this is 0. But f is an integral domain.
विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, सो आपके पास क्या आ जाएगा, ईदर a0 और ai माइनस aj 0, बट a is non-zero, therefore ai minus aj is 0, implies ai is equal to aj, implies I equal to j, which is contradiction because I is not equal to j. This is here. So अगर ये contradiction है तो this implies ai is never equal to aaj for I not equal to j. ठीक है, सो आपके पास कोई भी a1 a2 के इक्वल नहीं होगा या फिर a2 a5 के इक्वल नहीं होगा, ये सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. सो दिस दीज f, सॉरी ये बिलोंग नहीं आएगा, f इज इक्वल टू, सो दिस सेट कंटेन एग्जैक्टली n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. सो आप यहां पे लिखोगे. नेक्स्ट, सो अब स्टूडेंट्स हम कहां तक पहुंचे हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग में वी हैव एफ एन इंटेग्रल डोमेन जिसमें आपके पास एग्जैक्टली एन एलिमेंट्स थे. उसके बाद हमने इनमें से ही कोई एलिमेंट लिया a विच इज नॉन जीरो और हमने उनको मल्टीप्लाई किया इसी के एलिमेंट से. हमने एक और सेट बना लिया. अब ये सेट f के इक्वल ही क्यों होगा, ये सारे एलिमेंट्स f में ही क्यों होंगे, बिकॉज f इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. तो a इंटू a1 भी f का एलिमेंट होगा, a इंटू a2 भी f का एलिमेंट होगा और अप टू a इंटू an भी f का एलिमेंट होगा. सो उसके बाद मैंने लिखा, इसको प्रूव किया हमने कि दिस कंटेन एग्जैक्टली एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट. इसमें भी एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इसमें भी एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. अब हो क्या रहा है कि आपके पास ये जो a1 a2 a3 अप टू an है, इसी को सेम ही लिख दिया ना, ये भी सेट f ये भी सेट f. इसका मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट है ये रीअरेंजमेंट है. मतलब इनमें से a1 हो सकता है इसके इक्वल हो सकता है a2 इसके इक्वल हो, a4 के इक्वल हो. समझ गए. आपने क्या करना है, आपके पास एक सेट, सपोज मैं कोई एक छोटा सेट ले लेती हूं, a1 a2 a3, दिस इज a1 a2 a3. ठीक है, इनमें से ही मैंने a2 को उठा लिया और मैंने मल्टीप्लाई किया a2 इंटू a1 a2 इंटू a2 a2 इंटू a3 से. ठीक है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स. अगर ये सेट f था तो ये भी सेट f है. क्यों, क्योंकि हम उसी एलिमेंट्स के, उसी में से एलिमेंट्स उठाए और उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और f इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो फिर से उसी सेट का एक एलिमेंट आ जाएगा. अब हो सकता है कि ये a2 a1 यहाँ के a3 के इक्वल हो. ठीक है, हो सकता है ये a2 a1 जो है ये a3 के इक्वल हो, और हो सकता है ये a1 के इक्वल आ जाए, और हो सकता है ये a2 के इक्वल आ जाए. ठीक है, तो है क्या, इसी सेट की रीऑर्डरिंग हो रही है. ठीक है, यही एलिमेंट्स दोबारा आ जाएंगे. तो आपके पास इसमें भी यही हो रहा है कि यही वाले एलिमेंट्स के रीऑर्डर हो रहा है. सेम ही है, इसको रीऑर्डर में लिखा हुआ है. हो सकता है a1 इसके इक्वल हो सकता है an इसके इक्वल हो. ठीक है, अब हमने किसकी हेल्प से ये शो किया कि दिस कंटेन एग्जैक्टली n एलिमेंट्स. कौन सी प्रॉपर्टी की, विदाउट जीरो डिवाइजर्स. हम इसकी अब सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, यूनिटी वाली. f इंटेग्रल डोमेन है तो इनमें से कोई एक एलिमेंट 1 जरूर होगा. हो सकता है a3 1 हो सकता है a4 1 हो सकता है a5 1 हो. ठीक है, सो इनमें से कोई एक एलिमेंट जरूर 1 होगा. सो लेट since f is integral domain, therefore f is ring with unity also. Therefore 1 belongs to f. अगर 1 belongs to f है तो क्या होगा, इनमें से कोई एक ai1 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो लेट अस सपोज हम ये ले लेते हैं कि आपके पास यहां पे लेट
सम AI इज इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर सम I। अब हमने तो ये कहा था कि ये जो AIs है इसमें से कोई एक 1 होगा, पर ये भी तो सेम ही सेट है, ठीक है, तो AI भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, बट AI इज इक्वल टू सम AI विच इज, बट सॉरी ये लिखो, बट AI इज इक्वल टू सम AI, ठीक है, मतलब AI जो है वो किसी, या आप इसे सीधा ऐसे रख लो, सो 1 इज इक्वल टू, सो यू हैव 1 इज इक्वल, सो आपके पास AI जो है वो हमने 1 ले लिया फॉर सम AI। अब हम क्या कर सकते हैं, AI जो है इस सेट में से कोई एक एलिमेंट 1 हो गया, ठीक है। अब अगर सपोज मेरा ये वाला एलिमेंट, मैंने ये वाला एलिमेंट 1 ले लिया, A1 जो है वो 1 के इक्वल हो गया, तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे तो A1 1 के इक्वल हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ, A2 इंटू A3 1 के इक्वल हो गया, यही हुआ ना, सॉरी यहाँ पे ये 1 के इक्वल हो गया। सो अगर आपके पास यहाँ पे AI 1 है, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम AJ सच दैट, या फिर सीधा इसको लिख लो, देन देयर एग्जिस्ट सम AJ सच दैट AI इज इक्वल टू AJ, कि आपके पास कोई AI एग्जिस्ट, ऐसा AI यहाँ पे होगा, और कोई AJ इसमें से, मतलब A1 जो हो सकता है A4 के इक्वल हो, तो A4 और A1, तो I और J, ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट सम AJ सच दैट AI इज इक्वल टू AJ, और सिंस रिंग इज कॉम्यूटेटिव, तो आपके पास AJ एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, A के, सो बट AI क्या है, 1, बट AI is 1, so this implies AJ is equal to 1, or you can say AJ is equal to AJA is equal to 1। so इसका क्या मतलब हुआ कि AJ जो है वो इनवर्स हो गया A का, और A क्या था, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F, जिसका हमने इनवर्स निकालना था। तो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट अगर आप F से उठाओगे तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बट सो दिस इंप्लाइज AJ इज इनवर्स ऑफ A, ठीक है, सो दिस इंप्लाइज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F has multiplicative inverse। सो अगर आपके पास हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया तो आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। हमने यही प्रूव करना था। अगर हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इंटेग्रल डोमेन क्या बन गई, जो फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन थी वो क्या बन गई, फील्ड। मैं यहाँ पे फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। आपके पास A1 आपके पास फील्ड में है, गिवन है, क्योंकि R इज रिंग विद यूनिटी। तो लेट सम AI, इनमें से कोई AI 1 ले लिया, बट इनमें से कोई AI किसी AJ के इक्वल है, फॉर सम AJ सच दैट AI इज इक्वल टू AJ, बट AI इज 1, so AJ is 1, or you can say because ring is commutativity, तो AJ is equal to AJ is equal to 1. So this implies AJ is inverse of A. So A क्या था, A is non-zero element of F. So every non-zero element of F is multiplicative inverse. Students, let us try to solve the questions based on division ring as well as fields. Show that the set of matrices, this is 2 cross 2 matrices, is a division ring. So division ring, और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, example of division ring which is not a field. Clear? So अब इसको पहले division ring prove करने के लिए ring prove करना पड़ेगा, फिर commutative, अब
रिंग प्रूव करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टीज एडिशन की और मल्टीप्लीकेशन की। सो यहां पे मैं लिख रही हूं एडिशन वाली प्रॉपर्टीज और यहां पे हम लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? और क्योंकि हमने इसको डिवीजन रिंग प्रूव करना है, सो वी हैव टू प्रूव अ रिंग विद a non-zero elements forms group under multiplication. So division ring क्या थी? All non-zero elements of ring form multiplicative group. This we have to prove. ठीक है? और फिर फील्ड प्रूव करने के लिए a commutative division ring is called field. सो अगर कॉम्यूटेटिविटी है तो वो फील्ड होगी, अगर नहीं है तो इट इज नॉट अ फील्ड। सो ये तो यहीं पे डिसाइड हो जाएगा डिवीजन रिंग करने के बाद जब हम उसकी कॉम्यूटेटिविटी देखेंगे, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। अगर आप दो मैट्रिसेस उठा लो ए और बी फ्रॉम सेट एम, देन ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट एम। सो इट इज नॉट अ फील्ड। सो अब बात रह गई डिवीजन रिंग की। सो डिवीजन रिंग के लिए सबसे पहले एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, कोई भी दो मैट्रिसेस उठाओगे इस सेट में से, सो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एम, तो जब आप दोनों को ऐड करोगे, ए इज ऑफ द टाइप, एक करके देख लेते हैं, A1 प्लस आयोटा टाइम्स B1, C1 प्लस आयोटा टाइम्स D1 minus C1 plus iota times D1. This is minus A1 minus iota times B1, where A1, B1, C1, D1 are all real numbers. ठीक है? और B is of the type A2 plus iota times B2, C2 plus iota times D2, minus C2 plus iota times D2 and A2 minus iota times B2. जब हम इनको ऐड करेंगे a प्लस बी को, वी विल गेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। और क्या होगा, a1 प्लस a2 इज अगेन अ रियल नंबर, बिकॉज a1 और a2 दोनों रियल नंबर है तो उनका एडिशन भी रियल नंबर होगा। तो आपकी मैट्रिक्स a किस तरह से बनी है, a जो है वो रियल है तो इसकी भी फर्स्ट एंट्री रियल आ गई, प्लस आयोटा टाइम्स द रियल b1 प्लस b2। इसी तरह c1 प्लस c2 plus iota times d1 plus d2. So next element is minus c1 plus c2 plus iota times d1 plus d2. So exactly this type, minus c1 plus c2, or this is a1 plus a2 minus iota times b1 plus b2. So these all are real values, same values, रियल वैल्यूज। ये C1 प्लस C2 है तो यहाँ पे भी C1 प्लस C2 है, C एंड C, यहाँ पे C है तो ये माइनस C, यहाँ पे C1 प्लस C2 है तो यहाँ पे माइनस ऑफ C1 प्लस C2। सो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू M। सो इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद एसोसिएटिविटी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज एडिशन। जब भी आपके पास मैट्रिसेस का क्वेश्चन आता है तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मल्टीप्लीकेशन यहां पे लिख लो एसोसिएटिविटी, मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड्स। थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। सो किस मैट्रिक्स से इसको ऐड करूं, आई विल गेट द सेम, दैट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आई विल डिनोट विद capital 0 containing 0, 0, 0 and 0. You can write as 0 plus iota times 0, 0 plus iota times 0, or you can directly write as 0, 0, 0. When you add this to this, you will get again the same element A. So when we add A to 0, you will get A, or you can 0 plus A is again A. So identity exists. Next is inverse. So for every A there exists minus A। अगर आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स
ए है, ये ए है तो इसका इनवर्स माइनस ए भी 2x2 मैट्रिक्स ही होगी और ये एंट्रीज क्या है, रियल्स ही होंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है तो ऑपोजिट ही ना। सो आपके पास फॉर एवरी ए देयर एग्जिस्ट माइनस ए सच दैट फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए will be equal to minus a plus a is equal to 0. So we have inverse also. Inverse exists. Next is fifth property is commutativity, and addition of matrices is always. So next is four properties we have discussed of addition. First is closure, second associativity, third identity, and fourth is inverse. Next is commutativity. So commutativity में we have always a plus b addition of matrices is commutative. So you can always write a plus b is equal to b plus a, but with respect to multiplication is not commutative. For all a b belongs to set M. Now we will take properties of multiplication. So first property is closure. So मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स, जैसे हमने इसमें a और b ली थी, let a comma b belongs to set M. जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे a into b को, you will always get a मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 2x2 और जो उनकी एंट्रीज होंगी वो भी इसी तरह से होंगी, रियल नंबर्स. सो a into b also belongs to the set M. Next is associativity. As we have already discussed, the multiplication as well as addition of matrices is always associative. So associativity holds. You can directly write as, since matrix multiplication is associative, therefore associativity holds. Third property is existence of identity. So identity के लिए let I is equal to 1 0 0 1. This is unit matrix. So multiply, if I multiply a, that is equal to a1 plus iota b1, c1 plus iota d1 and minus c1 plus iota d1 with my a1 minus iota b1 with I, then I will get the same matrix. So a into I is equal to I into a is equal to a, therefore identity exists. This also belongs to M, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 plus iota times 0. So 0 is real, 1 is real. आपने यही एंट्रीज देखनी है ना कि ये रियल्स होने चाहिए ABCD. So they are reals. So this belongs to M. So identity exists. Next is inverse. अब inverse आपने डिवीजन रिंग है तो आपने सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स देखना है. अब नॉन जीरो एलिमेंट्स तो इसमें मैट्रिसेस में डिफाइन ही नहीं होते, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स की जगह आई विल टेक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मींस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है. सो फॉर ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट्स. ठीक है. सो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, हाउ विल यू फाइंड, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो यू कैन solve this value. This will always a 2x2 matrices, 2x2 मैट्रिक्स आएगी जब भी आप ए इनवर्स निकालोगे और जो एंट्रीज होंगी वो भी क्या होंगी, रियल नंबर्स. सो आपके पास ये मैट्रिक्स किस में चली जाएगी, एम में. सो इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर नॉन जीरो एलिमेंट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज these are the properties of multiplication. So एक चीज रह गई, that is distributive with respect to multiplication.
So how will we take up distributive with respect to multiplication? We will directly write for matrices A, B, C belongs to M. We have distributive law always holds for matrices. So this is equal to A into C and B plus C dot A is equal to B into A plus C into B. So distributive law holds for matrices. So therefore the given set M is a division ring. So it is not a field. Kyun? Because it is not commutative with respect to multiplication. But AB is not equal to BA for every A comma B belongs to M. Therefore it is not commutative, hence not a field. So this proves that it is a division ring. So students, thanks for watching the video.